Namaste, everybody. It is my pleasure to welcome Piyush ji in Ahmedabad Management Association, and all of you are most welcome. I first will give you his formal introduction, then I will tell you something more which I know. So formal is good to know because formal tells you the journey of life the person has taken. Then I will tell you, share my experience. Sri Piyush Sharma is a renowned Vedic scholar and speaker with strong foundation in Vedic studies and Hindu spirituality. A management postgraduate with extensive experience of marketing, sales, and business development. He uniquely integrates spiritual teachings with management principles. Since 2003, he has delivered insightful talks on the Vedic Upanishads and Hindu philosophy at global forums, including yoga studies, temples, churches, and multi-faith organizations, multi-faith gatherings across Canada, UK, and USA, and India. Currently, he serves as Vice President, Business Development and International Marketing, North America, at Wichita Info Solutions Private Limited. Fluent in English, Hindi, Bengali, and Punjabi. He resides in the Greater Toronto area in Canada. I have come to know of him about 2.5 years ago when my brother said that there is a person who is who's taking sessions on Upanishads and Gita, if you would like to join. Then he told me, you know who he is? I said, no, I don't know. He said he is Papa's friend. So as children, we must have known each other because my Papa visited his father very much, because my father was very fond of his father. And so we must have known each other as children. He also said he remembers me the day I got married because they were invited, so they must have. So that was a very surprise for me, and I really felt very nice that, because my father used to say, ke Upanishad padho when I was young, Gita padho, ye padho, wo padho, but as children we just don't do many things which the parents tell us, which is regretful, but so it is. So I have taken for 2.5 years, I have been listening to him every Saturday and every Sunday. We are a group of 15, 17 consistent people who meet every Saturday, Sunday from 7:30 to 8:30 p.m. First we listen to Upanishads, and then over the last 200 sessions, we are doing Gita. We have finished 14 chapters. And it is so nice to listen because it makes it so easy and so relevant for today that you just can't stop thinking about what he has said over and what it means today in our lives. How to translate that in day-to-day living, Gita. So it's my great honor and privilege to introduce him and bring him here. I said, ये आपके लिए है. Thank you. So now he will speak for about, there's something else in between, na? And then he will speak for about 40 minutes and then question answers. Now my Gita classes are very nice because even in the middle of while he's saying,
we can stop and ask questions. If we don't understand, he will re-explain everything over and over again without getting exasperated or without getting irritated. Sometimes we ask some very silly questions, which he tends to answer. In Canada, he also takes classes with children, because he believes that children should learn Gita from the beginning, from childhood, so there will be no telling lies, there will be no ethics problem, there will be no value problems. It's only when the child learns from the beginning that all this happens in our culture. Ram Rajya happened that way because every child was taught from the beginning what was right and what was wrong. So how to differentiate right from wrong is a major lesson from the Gita, which children can learn, so they will not make mistakes. I think I will now stop and let him have the mic. And who is supposed to do it? Aparna, okay. So, good evening, everyone. After this warm introduction of Mr. Piyushi, AMA is proud to announce the upcoming edition of the Amazing Summer. The Amazing Summer 2025 is the vacation workshops for students and youth that we conduct year on year. And this is the perfect opportunity for us to do the curtain raiser and kickstart this year's summer workshops. So I would request everyone to participate in the unveiling of the poster of Amazing Summer 2025. Before we do that, we'll just share a glimpse of the past year's summer workshops and how we are performing. So that will give everyone an idea of how these workshops are and what are the target group as well as the types of workshops that we conduct. So I hope you enjoy this video. This video has been created especially by our social media team. So everyone please enjoy the video. So now I would request Shri Piyushi and Professor Indira Parikh Madam to kindly unveil the poster for the Amazing Summer 2025. I would now request Shri Piyushi to deliver his talk on the subject. Namaste, everybody. I'm really thankful to Indira Parikh ji for having me invited here and for the lovely words that she has spoken about me a few minutes ago. I'm really obliged. And I'm really obliged to all of you for having come here to listen to me also. Let me first ask you a couple of questions before I start my talk. How many of you are going to start a career, say now, next few days or next few weeks or next few years, and you're studying? Could you raise your hands so that I know who are the type people I'm talking to? Can we have a raise of hands? All right. I have a fair idea. Second question. How many of you don't understand Hindi? Is there anybody who does not understand Hindi? Am I all right if I speak in Hindi to you people? Thank you.
And I apologize that I cannot speak Gujarati. Otherwise, I would have spoken to you in Gujarati. I can understand fully Gujarati, but I cannot speak because I'm not used to. And I really apologize. हमारी इंडियन लैंग्वेजेस ऐसी हैं, हमारी सभ्यता ऐसी है कि अगर आप थोड़ा सा संस्कृत पढ़नी शुरू करेंगे तो आपको सारी लैंग्वेजेस समझ आने लग जाएंगी. They are such interlinked to each other that it becomes very easy to understand them. Anyway, दो चार बातें particularly housekeeping की before I start further. अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ हमेशा मदर टंग में ही बात करें. Speak always in your mother tongue. No matter what happens. ये दुनिया जो है, जो कि सारा का सारा बाहर का प्रपंच है, जो कि स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन, ये सब आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह सिखा देगी. तो आपका जॉब नहीं है कि आप अपने बच्चों से या अपने बड़ों से इंग्लिश में बात करें, तो अपनी मदर टंग में ही बात करिए. अगर आप मदर टंग में बात करेंगे तो आप अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, और अगर आप जुड़ेंगे तो आप अपने रूट्स के साथ अटैच्ड रहेंगे. अगर आप रूट्स के साथ अटैच्ड नहीं होंगे तो जिसको हम वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ हम लोग ABCD कहते हैं ना, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी, वो वाला हाल हो जाएगा. सो इट इज़ बेटर टू बी अटैच्ड टू योर रूट्स एंड stay firm on that. I was going to talk about, that's what I'm supposed to talk about, the heritage and how that guides our career path. Heritage को, what do we understand when we think of heritage? आपको क्या लगता है जब हम heritage की बात करते हैं, क्या समझ में आता है? हमारे ancient culture जो हमारे बड़े follow करते आए हुए, क्या फॉलो करते आए हैं? क्या फॉलो करते आए हैं? रूल्स रेगुलेशन है, जो भी क्रिया करते हैं रूटीन लाइफ में, धन कमा के अलावा. नहीं, धन कमाना तो बिल्कुल हेरिटेज का पार्ट है. एक्चुअली मुझे चाहिए था कि मैं एक मंत्र के साथ शुरू करता आज. मैंने गलती कर ली है. ये मुझे कहना चाहिए था, ये मंत्र मैं अब कहता हूँ. ये मंत्र, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्य सिद्धिर भवेन. This is a प्रार्थना that we do to the Almighty God. हे ईश्वर दया निधे, जो हमेशा दया करते हैं हम सब पर, आप ये भवत कृपया करिए हम सब के ऊपर. हम जितने भी जप उपासना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी हम करते हैं, जो कि हम करें, वो सब धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हो, और इसके लिए सद्य सिद्धिर भवे न, जितनी जल्दी हो सके और अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर तरीके से हमको उसको प्राप्त कराइए. ये हमारी प्रार्थना है. इस प्रार्थना को आप रोज बोलेंगे तो ये आपको गाइड करेगी. ये हेरिटेज है हमारी. हमारी हेरिटेज कहती है धर्म अर्थ काम मोक्ष. हर काम, हर कर्म, everybody is welcome. I'm so glad that we have more. Most welcome. Settle down, settle down, settle down, settle down. तो पहली बात मैंने आपसे जो की थी वो मैंने आपसे मातृभाषा की थी. मातृभाषा इज पार्ट ऑफ योर हेरिटेज, है ना? वो भी तो हेरिटेज है ना आपकी. फिर मैंने आपसे बात की है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष. धर्म अर्थ, तो आपने अभी पीछे पूछा ना पैसे कमाने वाली बात, वो इमीडिएटली आ जाती है कि अर्थ कमाना हम सब का फर्ज है, हम सब की ड्यूटी है. वी मस्ट मेक मनी एंड वी मस्ट मेक अ लॉट ऑफ मनी.
लेकिन हमारे जो भी एफर्ट्स हैं वो धार्मिक पथ पर होने चाहिए। पहला काम है धर्म। धर्म के हिसाब से आप अर्थ कमाएंगे और धर्म के हिसाब से आप कामनाएं करेंगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं इसको इस तरह शॉर्ट में समझा नहीं सकता आपको अभी, बट मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि हेरिटेज हमारी हमको ये सिखाती है कि सिर्फ कर्म कांड नहीं होते कि मेरे पिताजी जो हैं सुबह उठ के दिया जलाते थे या मेरी माँ अगरबत्ती जलाती थी। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर हेरिटेज। हेरिटेज इज़ योर वैल्यू सिस्टम दैट वी imbibe or inherit from ages and ages that has been with us. अब आप सबके पास जो सबसे पुरानी अवेलेबल हिस्ट्री है वो है भगवान राम की। All of you have heard the name of भगवान राम, you have heard रामायण used to be there, उस वक़्त ये हुआ था, ये कहानी थी, whatever it is. Of course that is the oldest. उसके पुरानी कोई कहानी हम लोग को पता नहीं होती, याद नहीं होती, लेकिन वो तो याद है ना। तो उसमें वैल्यू सिस्टम क्या थे? उसमें वैल्यू सिस्टम थे ना, उसमें वैल्यू सिस्टम थे सबसे पहले अपने पिता की और माता की आज्ञा का पालन करना, सबसे पहला था ना। कितना स्ट्रांगली उसको फॉलो करते हैं ना भगवान कृष्ण, भगवान राम। और उसके बाद वैल्यू सिस्टम क्या थे? वैल्यू सिस्टम ये थे कि जब ऋषि के पास उनकी जो भी आश्रम चलते हैं उसमें जब असुरों का अटैक होता है तो वो दशरथ के पास आके राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं कि दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट, और ये लोग लड़ेंगे और असुरों को मारेंगे तो हमारे यज्ञ और बाकी कर्म जो है वो ठीक चलेंगे। तो वैल्यू सिस्टम है ये। वैल्यू सिस्टम क्या है कि राजा और जो उनके इमीडिएट लोग हैं उनका फर्ज है, उनकी ड्यूटी है कि वो असुरों से प्रोटेक्ट करें। ये वैल्यू सिस्टम है ना। और किसको प्रोटेक्ट करें? जो ऋषि हैं, साधु हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करें। वैल्यू सिस्टम आ गया ना आपके सामने का। फिर वैल्यू सिस्टम आ जाता है जब भगवान राम ओपनली कहते हैं कि किसी भी मैन को, किसी भी वुमन को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। ये वैल्यू सिस्टम आ जाता है ना हमारे सामने। कब का है? कितने लाख साल पुराना है ना वैल्यू सिस्टम। आज भी हमको दिखता है ना ये। उसके बाद जब भगवान राम जंगल में भी जाते हैं और अलग अलग कहानियां हैं उनकी, बहुत सारी ऐसी कहानियां जो हमको प्रेरणा देती हैं, हमको सिखाती हैं। ये सब कुछ हमारा हेरिटेज है। इन हेरिटेज को अपनी जिंदगी से बाहर मत जाने दीजिए। पहला बात तो ये है कि स्वधर्म का पालन करिए। गीता में इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज दिया हुआ है भगवान कृष्ण ने। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म होता है जो कि आपकी अपनी इंडिविजुअल इंक्लिनेशंस, योर ओन पर्सनैलिटी, व्हाट आई वांट, व्हाट इज विद इन मी। आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, और आई वांट टू बिकम ए bombardment plane fighter, or I want to be the army man, or I want to be a professor or a teacher. What do I wish to be? वो एक अंदर इंक्लिनेशन होती है जो हमारे अंदर अपने आप होती है। वो फर्स्ट है। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन है और जो आपकी ट्रेनिंग है, ऑल दीज थिंग्स फॉर्म स्वधर्म। इन सब का पालन करना, इनके ऊपर चलना आपका धर्म है, स्वधर्म है। सो पहला तो अपने आप का एक स्वॉट एनालिसिस जरूर कर लीजिए। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को रख के उनको एनालाइज करिए कि व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट एम आई नॉट गुड एट, एंड व्हाट एम आई गुड एट, फॉलो दोज थिंग्स, डू दोज थिंग्स। यस, आई एम गुड एट दिस, आई वांट टू फॉलो दिस। और उसके साथ इस चीज़ को याद रखिए कि मेरे अंदर इन बिल्ट क्या स्ट्रेंथ है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। किसी में भी जो भी किसी में स्ट्रेंथ है वो दूसरे में नहीं होती। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ्स को कैसे पहचानते हैं? माँ बाप बता देते हैं कि ये तू बहुत अच्छा करते हो बेटा, ये तुम अच्छा नहीं करते हो, ये बहुत खूब है। टीचर्स बता देती हैं, जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है आसपास, वो सब ये बातें करते हैं कि व्हाट इज़ गुड अबाउट इट। तो स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से वीकनेसेस को एनालाइज करिए। यू डोंट नीड टू टेल एनीबडी,
It can be within yourself, keep it to yourself. If you want to share, sure do it. If you don't want to, don't share it. लेकिन एक अपना strengths and weaknesses का analysis करिए, so that you know that what am I good at, what am I not good at. Of course, that can be a starting point to say that I need to work on these areas so I can become better. ऐसा भी होता है कि हम लोग कभी सोचते हैं कि ये मेरे में ये क्यों बुराई है, मेरे में ये क्यों बुराई है, and you need to work on it. लेकिन अपनी स्ट्रेंथ जब पता चलती है तो करियर पाथ सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है कि ये मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसमें अच्छा हूँ, और जिसमें आप अच्छे हैं उसमें एक्सेल करिए. ये आपका स्वधर्म है. यू शुड ऑलवेज एम टू बी द बेस्ट, एंड द बेस्ट नॉट फॉर समबडी एल्स, फॉर माई सेल्फ. मेरे अंदर जो मैं हूँ ना, इसको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने अपना बेस्ट किया है. यू शुड नॉट, कैन नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर ओन सेल्फ कि मैं शीशे में अपना मुंह नहीं देख सकता क्योंकि मैंने ठीक काम नहीं किया. ये तो नहीं होना चाहिए. सो करियर पाथ के लिए स्वधर्म, ये हमारी हेरिटेज है. उसके बाद आता है स्वकर्म. वो कर्म जो हमको करने हैं, वो कर्म जो हमने रोज करने हैं और आगे करने हैं. तो क्या कर्म है हमारे? हमारे कर्म जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. मनसा वाचा कर्मणा. जो मन से हम सोचते हैं वो कर्म होता है. एनीथिंग दैट यू थिंक, जो भी आपने मन में बात सोची है वो कर्म हो गया है. वचन से, जो हम मुंह से बोलते हैं, वो हमारा कर्म होता है. और जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, वो तो कर्म होता ही है. अब क्योंकि कोई भी ऐसा काम हम आप कोई नहीं करते, जानवर भी नहीं करते, जो पहले वो मन से सोच नहीं लेते. अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आपने ये सोच लिया कि ओके लेट अस गो एंड अटेंड दिस सेशन. अगर आप नहीं सोचेंगे तो यहाँ तो नहीं आएंगे आप. तो जो भी आप काम करते हैं आप उसको पहले सोच लेते हैं कि मुझे ये करना है. और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप सोचते तो हैं पर आप करते नहीं हैं, यानी कि एक्शन क्या फिजिकली नहीं करते, लेकिन वो भी कर्म होता है और वो हो गया. दूसरी बात, कोई कर्म ऐसा नहीं होता जो बिना कर्म फल दिए कट सकता है. नो मैटर आप जितने पंडित बुला लीजिए, जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, जितनी डुबकियां लगा लीजिए, बिना कर्म फल के कोई कर्म नहीं कटता, भुगतना ही पड़ेगा. और होता क्या है, अगर मैं अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो कर्म फल मेरे पड़ोसी को नहीं मिलेगा, मुझको ही मिलेगा. So own the responsibility. Own the responsibility of every action you take in your life. कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका जो रिजल्ट होगा, and don't point fingers कि because of that, because of this, because of that, because ऐसे नहीं होता नहीं. You have to own the responsibility कि ये कर्म अगर मैंने किया है तो कर्म फल मुझे मिलेगा. अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा. सो अगर आपको ये क्लियर हो जाता है दिमाग में, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे कैसे कर्म करने हैं और मुझे कौन से करियर पाथ को या कौन से अपने प्रोफेशन को चुनना है जो मेरा स्वधर्म फॉलो करे. यानी मेरी अपनी इनबिल्ट स्ट्रेंथ, मेरी एजुकेशन, मेरी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, इन सब को फॉलो करे. एंड आई हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी एंड आई नीड टू बी द बेस्ट. And then I know that I am answerable for all my actions and all my thoughts. अब यहाँ पर बड़ी अजीब बात ये है कि हम सबको ये पता है कि there are many times in our lives that we think of something or we wish something or we want something, पर हम किसी को बोलते नहीं हैं, लेकिन वो पूरा हो जाता है. होता है ना, होता है ना. ये हमने कभी किसी को नहीं कहा, लेकिन अजीब बात है कि वो मेरी विश पूरी हो गई. ये होता है. और ये कैसे होता है?
वो ऐसे होता है कि हमारे अंदर, इंटीरियर के अंदर, सबके अंदर परमात्मा का अंश होता है। द क्रिएटर, जो बनाने वाला है, क्रिएटर है, उसका अंश। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलें कि परमात्मा है ही नहीं, प्रूव करके दिखाओ। उसके ऊपर फिर बाद में कभी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन हम सब के अंदर वो क्रिएटर परमात्मा का अंश होता है, और इसी से उसको पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या है। जब हमारे मन में क्या है उसको पता चल जाता है, तभी तो वो हमारे कर्म फल का फल दे सकता है ना, कर्म का, क्योंकि उसको पता है। तो इस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी में अपने से अलग मत करिए। अगर आप नहीं करेंगे अलग, तो आप कभी गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपसे पाप नहीं होगा। गलतियां हम सब करते हैं, गलतियां करनी भी चाहिए, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। गलतियों में कोई बुराई नहीं है। अगर गलती की तभी पता चलता है कि ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आप करियर पाथ चलाएंगे आगे, तो इस चीज़ को याद रखिए कि अपने देश के, अपनी सोसाइटी के, अपने धर्म के अगेंस्ट कभी कुछ मत करिए। No matter how much money is being handed over to you, no matter what position is being given to you, no matter how much of elated you feel, but don't do it. Because एक बार जब उस पाप में इंसान धंस जाता है ना, तो निकल नहीं पाता, उसमें से मुक्ति नहीं मिलती। मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बता दी हैं। मैंने आपको बताया है कि स्वधर्म क्या है, कर्म कैसा करना चाहिए, कि हर एक कर्म का जब कर्म फल होता है, कि कर्म करते अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, अपना प्रोफेशन करते समय याद रखिए कि मुझे अपने स्वधर्म स्वकर्म के हिसाब से करना है। एंड आई नीड टू एक्सेल, आई ऑलवेज नीड टू परफॉर्म द बेस्ट। क्यों? You know, there are always people who are looking at you to get inspiration. मेरे पास बैठी है ना इंदिरा बहन, मुझे नहीं पता इस दुनिया में कितने, मैं 1000 तो नहीं बोल सकता, लाख लोग हैं जो इनसे इंस्पायर्ड हैं। मुझे नहीं पता, इतने लोग हैं जो इनसे इंस्पायर्ड हैं। You are always an inspiration to somebody or the other. एक इंसान is good enough. And you can have a circle, you may have friends. There are people who don't tell you this. They will not tell you that we are inspired by you. कई बार ऐसा होगा कि वो they might be jealous of you, but वो jealous इसीलिए होते हैं because you are a good person, you are a better person. उसमें कोई problem नहीं है. And then they will be inspired by you. So you are always an inspiration, if to nobody else, to yourself for sure. अपने लिए भी तो एक इंस्पिरेशन होनी है मुझे। तो परफॉर्म हमेशा अपना बेस्ट करिए, ऑलवेज गिव योर बेस्ट। डोंट रिग्रेट कि मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मुझे इतने मार्क्स और मिल जाते, मैं ये थोड़ा अच्छा कर लेता तो नहीं। रिग्रेट करने की क्या ज़रूरत है? जब अच्छा परफॉर्म करोगे तो रिग्रेट करने का, क्योंकि गया हुआ दिन तो दोबारा आएगा नहीं। द एज दैट इज गॉन इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू एवर अगेन। सो दिस इज दी, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द हेरिटेज। अब आप कहेंगे कि मैंने आपसे धर्म अर्थ कहा था। धर्म क्या होता है? मैं आपको पहले धर्म की बात बताता हूँ थोड़ी सी, एंड आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू इट इन डिटेल। धर्म का मतलब होता है वो चीज़ें जो धारण करने योग्य होती हैं। और धारण करने योग्य क्या होता है? जो परमात्मा के नियम हैं। एवरीथिंग दैट यू सी एज द लॉ ऑफ द नेचर, द लॉ ऑफ द क्रिएटर, the law of the maker, which is universal everywhere in the world. वो कहीं भी चेंज नहीं होता। हमको पता है कि आग जो है वो हमेशा ऊपर उठेगी, पानी हमेशा नीचे गिरेगा, पानी हमेशा ठंडा करेगा, वायु हमेशा बहा के ले जाएगी। जितने भी ऐसी चीज़ें हैं, और ह्यूमन रिलेशंस में भी सब, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जो लॉज ऑफ द नेचर होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती। सो लॉज ऑफ द नेचर को धारण करना धर्म होता है। पहला, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, इसको मान के चलिए।
रिलीजन जो होते हैं वो बाद की बात है, वो हम उसको प्रैक्टिस करते हैं या हम उसको फॉलो करते हैं, वो दूसरी चीज़। लेकिन अगर आप कोई भी काम करते हैं दैट इज़ अगेंस्ट दी मैनकाइंड, अगेंस्ट द सोसाइटी, वो ऑलरेडी तो हो गया ना, अगेंस्ट दी परमात्मा के नियम के विरुद्ध हो गया ना वो। जब वो विरुद्ध हो गया तो इसका मतलब आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। तो धर्म और उसके हिसाब से अर्थ, पैसा कमाना, सक्सेस करना, मेक टन्स ऑफ मनी। काम, कामनाएं, काम का मतलब होता है कामना, इच्छा, डिजायर्स। जितनी भी डिजायर्स हैं वो धार्मिक पथ पर ही होनी चाहिए। ऐसी डिजायर्स नहीं होनी चाहिए जो कि गलत जगह लेके जाएं। कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सिस्टम पर करेक्ट, धार्मिक पर करेक्ट खरी उतरनी चाहिए। अगर मेरे दिल में कर रहा है कि मैं यहाँ पर सबको गोली मार दूँ तो वो धार्मिक डिज़ायर नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ द क्रिएटर। पता होना चाहिए कि मैं गलती करने वाला हूँ, मुझे इस तरफ नहीं जाना। आई डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट इट। सो कामना, इच्छा, अगर हम धर्म के हिसाब से अर्थ और कामनाओं को फॉलो करेंगे तो फाइनली हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खुलेगा। अब आप कहेंगे कि भाई मोक्ष क्या है, किसको है, किसको है, कितनी दूर है, ये पता नहीं। लेकिन मोक्ष का मतलब वो मत समझिए जो सारी दुनिया आपको समझाती है। ये समझिए कि उसका मतलब है अच्छी ज़िंदगी, मुक्त ज़िंदगी। मुक्त वो होती है जिसमें प्रॉब्लम्स, पाप, तकलीफ़ें नहीं होती। जब ज़िंदगी अच्छी गुजरती है मनुष्य की, उसके अंदर तकलीफ़ें नहीं होती, तो लगता है कि मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। उतना ही फ़िलहाल आप समझिए इस बात को। और जब अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छे मिलेंगे ना। तो कर्म फल बुरा क्यों मिलेगा? जब अच्छे ही कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे। हर चीज़ का तो हमको कर्म का फल मिलता है ना। हम मेहनत करते हैं तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये तो हमको पता है ना कि हम मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम झूठ बोलेंगे तो लोग हमें बुराई करेंगे। ये तो हमको दिखता है ना आंखों के सामने। सो इसको अडेप्ट करिए और इसको अडेप्ट करके करियर पाथ को सेलेक्ट करिए। बी फर्म ऑन योर फीट। अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपने आप को डावाडोल मत करिए, फर्म रहिए। डोंट बी स्प्लिट, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। नो, बी फर्म ऑन योर फीट, बी श्योर व्हाट यू वांट एंड बी फोकस्ड। इफ यू आर नॉट फोकस्ड यू विल नॉट गेट एनीथिंग। जब तक वो आदमी फोकस नहीं करेगा वो मेरी पिक्चर नहीं ले सकेगा, नहीं ले सकेगा ना, क्योंकि वो ब्लर हो जाएगी ना। उसी तरह हमारी ज़िंदगी ब्लर हो जाती है। जिनकी ज़िंदगियाँ फोकस नहीं होती उनकी ज़िंदगी बिखर जाती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पता ही नहीं चलता कहाँ कब नहीं। और मैं आपको बताऊँ, एक मेरी उम्र में आके जो, खैर मेरे पास बैठी हैं इंदिरा बहन भी यही बात कहेंगी, हमारी उम्र में आके ये लगता है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये यूं पलक ऐसे निकल जाती है, एक सिनेमा की तरह सामने से गुजरती चली जाती है। एंड देन यू विल कैच इट बैक एंड से कि हमने ये ठीक नहीं किया, हमको ये ऐसे करना चाहिए था। वो यू नो व्हाट, डू इट व्हेन यू आर इन होल्ड ऑफ इट, यू आर होल्डिंग द जिंदगी इन योर हैंड्स, डू इट प्रॉपरली। उसको रिफाइन करिए, उसको डिफाइन करके प्रॉपर काम करिए। फोकस्ड रहिए, हमेशा फोकस्ड रहिए। अपने आप को भटकने मत दीजिए, बुद्धि को भटकने मत दीजिए। भटकने वाली बुद्धि कभी फोकस्ड नहीं होती। अपने पर्पस पे फोकस्ड रहिए, अपने कर्मों पे फोकस्ड रहिए, अपने स्वधर्म के ऊपर फोकस्ड रहिए। यही मुझको करना है, यही मुझको अचीव करना है। हम सब पढ़ते हैं ना रोज पेपर्स के अंदर कि कोई ऑटो ड्राइवर की बेटी है वो टॉप कर गई है, और कोई इसकी कौन हमारे क्रिकेटर हैं जो कि पानीपुरी वाली के बेटे हैं और ही सच अ बिग क्रिकेटर टुडे। हम सब पढ़ते हैं ना ये चीज़ें। कैसे होता है? बिकॉज दे आर फोकस्ड, बिकॉज उनको ज़िंदगी के पर्पस में उन्होंने लगन के साथ मेहनत की है कि हमने यही करना है। तो हमको दिखता है कि ये पॉसिबल है, होता है ये। उस चीज़ को अपने सामने एग्जाम्पल बनाइए और उसको फॉलो करिए। अब यहाँ पर ये है कि जब कर्म अच्छे होंगे तो कर्म फल अच्छे होंगे।
हम सबको कर्मफल से ही सारी ज़िंदगी मिलती है। हमारे सामने जो है वो हमारे कर्मफल ही हैं। आप सब ने कोई ना कोई कर्म किए हैं। ये तो किया है कि मैं जाके ये क्लास ये सेशन अटेंड करूं तो आप यहाँ बैठे हैं, उसका कर्मफल मिल रहा है आपको। ये तो है कि मैं इस कोर्स में एंटर करूं अपने आप को तो मुझे ये पढ़ाई की एजुकेशन मिलेगी और उसका से मेरे को करियर में ये बेनिफिट मिलेगा। ये भी तो कर्मफल है ना आपके पास। तो अपने कर्मों पे फोकस करिए, कर्मों पे फोकस करिए। और फाइनली मैं यही कहूँगा आपसे, कर्मों पे फोकस करेंगे और अपने अंदर की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स पॉजिटिवली मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अब ये आप कहेंगे कि सबकी ज़िंदगी में दुख होते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, कभी एक्सीडेंट्स होते हैं, कभी कुछ लोग मर जाते हैं, सब कुछ होता है, दुख सबकी ज़िंदगी में होते हैं। तो ये चीज़ है जो कि सबकी ज़िंदगी में होनी ही है। लेकिन जब आपके कर्म फल अच्छे होंगे तो दुख के जितने इवेंट होंगे वो कम असर करेंगे और आपको साथ लेके डूब नहीं जाएंगे। यू विल बी एबल टू सर्वाइव देम वेरी वेरी कंफर्टेबली, मोर कंफर्टेबली देन अदर पीपल कैन, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी होगी, बहुत अच्छी बन चुकी होगी। आपको परमात्मा के न्याय पर विश्वास हो गया होगा that yes, if I have been doing good, things should be good. Bad things have happened, but they are going to culminate into good. So, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मैं आपको कोई फ्यूचर की बातें नहीं बता रहा हूँ कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और ना ही मैं आपके साथ इस समय कोई स्पिरिचुअलिटी की बातें करने के लिए बैठा हूँ कि मैं आपको मोक्ष के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊँ। तो मैं आपको कंसाइसली इस तरह से ही ये बात बता सकता हूँ, तो मैंने यही बताया है आपको। आप सबको पता है कि फोकस्ड होने का फ़ायदा क्या है। आप सबको पता है कि जो अक्ल और बुद्धि आपकी होती है वो जब फर्म होती है, टिकी होती है, ग्राउंडेड होती है, तो उसका फ़ायदा क्या होता है। आपको पता है कि अगर आप भटकने वाली बुद्धि रखेंगे तो आप बिखर जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये जितनी आपको बातें मैंने बताई हैं, ये सब बातें हमारे हेरिटेज में से कहीं ना कहीं से पीटर डाउन होकर आती हैं। और अपने आप को बड़ा ही फर्मली इस चीज़ के साथ खड़ा रखिए कि हमसे ज़्यादा अच्छी संस्कृति किसी की नहीं है दुनिया में। जो हमको धरोहर मिली है, जो हमको संस्कृति मिली है, जो हम लोगों को हेरिटेज मिली है, जो हम यहाँ रहते हैं, हमसे अच्छी हेरिटेज और संस्कृति। और मैं आपको ये फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ एज अ प्रूफ, क्योंकि मैं 30 साल 30 इयर्स से मैं कनाडा में प्रोफेशनल हूँ। मैं वहाँ काम कर चुका हूँ, अमेरिकन कंपनीज़, कैनेडियन कंपनीज़, मैं सब के लिए काम कर चुका हूँ। और मेरे सारे कस्टमर्स, मेरे सारे टीममेट सब वहाँ के लोकल लोग हुआ करते थे। आई हैव नेवर डन बिजनेस विद द इंडियन कम्युनिटी एनीवेयर, सो मुझे उनका नॉलेज नहीं था। लेकिन जो भी कल्चर्स के साथ मैं डील करता हूँ, और हमारे पास वहाँ सारी दुनिया के कल्चर्स होते हैं, सारी दुनिया के कल्चर के लोग होते हैं, जिनके साथ भी मैं डील करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बातें करता हूँ, मैं आपको ये बहुत फर्मली बता सकता हूँ कि हमारे जैसा कल्चर, हमारी जैसी हेरिटेज किसी की नहीं है दुनिया में। ये भरोसा रखिए, इस भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी जिए, इस फर्म चीज़ को अपने अंदर ग्राउंड करके रखिए कि मैं इस कल्चर से आया हूँ, आई हूँ, मेरे जैसा तो मुकाबला कोई कर नहीं सकता। मैं आई विल ओपन इट अप टू क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। कोई स्पेसिफिक बात पूछना चाहते हैं या री एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट टू यू। और कभी कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। जी हाँ जी, किसी के कोई क्वेश्चंस हो। जो उन्होंने पीछे बीच में एक बात बोली थी पैसे कमाने के बारे में, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। प्रार्थना की कोट्स उपनिषद का है। किस चीज़ का?
आपने जो बिगिनिंग में प्रार्थना के बारे में बोला ना, हाँ, तो कोट्स ये नहीं, ये एक वेद मंत्र से निकला हुआ है, अच्छा, किसी वेद मंत्र से निकला हुआ है ये, हे ईश्वर दया निधे भवत Exactly. कृपया। हाँ जी, तो that quote can be get from any place, YouTube etc. हाँ मिल जाएगा आपको कहीं भी, आप इसको एंटर करेंगे, ये शुरू के 3-4 लाइन वर्ड्स एंटर करिए, पूरा मंत्र आपको मिल जाएगा। Fine. हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया, इसी को एंटर कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। આ વિશ્વગુરુ ભારતની દ્રષ્ટિ પશ્ચિમ બાજુ કેમ જઈ રહી છે? समझा नहीं मैं, सॉरी। વિશ્વગુરુ ભારત આજે પશ્ચિમ બાજુ જઈ રહ્યું છે એની દ્રષ્ટિ। नहीं, अब ये तो देखिए वही बात है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब कोई अच्छा कर्म करने वाला और अपने फोकस के ऊपर खड़े होने वाला हमारे सामने, हमारे बीच में एक कंट्री का लीडर मिल जाता है आपको, तो ही हम विश्व गुरु बनने का सपना देख सकते हैं ना। हम सबको पता है ना, आफ्टर ऑल इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल तो हमारे अंदर है ना, तभी तो वो सोचते हैं ना कि मैं विश्व गुरु बनाने का सपना देख सकता हूँ, वरना तो नहीं सोच सकते ना। लेकिन हमारे अंदर है ना वो, यही तो हमारा हेरिटेज और कल्चर है ना। મુસ્લિમ લોકો 100% લોકો કુરાન વાંચે છે સાહેબ, આપણામાં યંગ બ્લડ 0% છે। किसकी गलती है? किसकी गलती है? આવો આપણી हमारी गलती है। અમારી ગલતી हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, हमारी गलती है। નહીં, એટલે ગલતી એટલે બહુ મોટી ગલતી છે સાહેબ। तो इसको करेक्ट करिए ना, इसको करेक्ट करिए ना। अगर आपको पता है कि हमारे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में गीता या उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते, तो आप घर में पढ़ाइए, घर में बैठाइए, पंडित हुए क्लास कराइए, बैठाइए, किताबें लाइए, पढ़ाइए। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे तो और कौन सिखाएगा? और हमको ये चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट्स के साथ इस चीज़ को प्रेशराइज करें कि स्कूलों में गीता पढ़ाई जानी चाहिए। कोई बच्चा जो ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8 में है, उसको गीता पढ़नी चाहिए, बिकॉज वो गीता पढ़ेगा तो वो फोकस्ड होगा, उसको पता होगा कि गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि गीता में, मैंने जिसके ऊपर अभी बात नहीं की है आज, कि गीता में सिर्फ ये तो नहीं कहा गया ना, गीता में तो ये भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़े तो तुमको धनुष भी उठाना है, बाण भी उठाना है, और सामने जो सेना है उसका नाश भी करना है, ये भी तो कहा गया है ना। तो ये सब चीज़ें तो हमको सिखानी ही पड़ेंगी। तो हमारी गवर्नमेंट्स ने फेल कर दिया है, डजेंट मैटर, वी शुड डू इट, बिकॉज आपने जिनका नाम लिया वो घरों में पढ़ाते हैं ना, तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? ठीक। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? My question is what you spoke about actually, like you mentioned that you feel like the life is gone like just like that. So you know what's happened generally, like we realize the mistake after making the mistake. So any suggestion on that, how to be? We always realize the mistake after we make the mistake. But how many times do we make the same mistake again and again? So at least if we have made a mistake, we can make a full stop and say that I am not going to make this mistake again. That can be done. Next time there might be a new mistake, but at least the old one will not be repeated again. तो अगर वो बंद हो जाएगी पुरानी मिस्टेक, तो अपना पता चलेगा कि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ अपने आप को करेक्ट करना होती है। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लुक इनसाइड योर ओन सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ। हम सारी ज़िंदगी दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, ये तुम्हारे में ये खराबी है, तुम्हारे में वो है, यू डिड दैट, बट यू नो यू कैन चेंज नोबडी इन द वर्ल्ड।
You cannot change anybody in the world, but you can only change your own self. So start working within yourself. Look inside and see that where can I make corrections. And if you made a mistake and you realize I've made a mistake, that's already a first good step taken. At least realization तो है. और उस realization के बाद उस mistake के लिए दोबारा मत करिए. Never do it again. Promise yourself, commit to yourself that I should not do it again. And if you do it again, punish yourself. Karma will punish you, but punish yourself. And then don't repeat it. So you will understand that how can I change and stop myself from making mistakes. You cannot change what has already happened. You can never change what has already happened. But you can change what is going to come. Hanji. Hello. How to stay focused? Like in last 5 years, I changed 4 career interests. So how this Vedic and heritage guides helps me to stay focused? You need to really do an analysis of your own strengths and weaknesses. You need to understand what you are good at and what you are not good at. It might look a little vague at a certain age that मुझे ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता ही is not the question. मैं अच्छा किस चीज़ में perform कर सकता हूँ? What is good in me? What can I do good? अब कई बार क्या होता है कि parents are too much under pressure to tell you कि this is the career you must take because you will make money. But that might not be a good career for you. But if you have a good one-on-one talk with your parents, they will tell you that yes, you have, bachpan se you have been good at this, you have been good at that, good at this or bad at that. And then there are your teachers. Your teachers can tell you, yes, you are good in this subject, you are not good in this subject. You have an understanding. You will also understand. This is the subject that my professor is teaching in the class on board and I get it very quickly and I'm so much interested in it. And there are other subjects which the teacher is teaching and I'm going to sleep. I'm not really interested. You know it. तो जो आपको अच्छा लगता है, जो समझ में आता है कि ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मैं आई एम गुड एट दिस, उसको फॉलो करो. उसको प्रॉपर तरीके से फोकस होके फॉलो करो. और फोकस अपने आप को भटकने मत दो. एक पाथ के ऊपर खड़े हो जाओ कि ये मेरा पाथ है. This is what I'm going to do. Then don't change. Don't let people pull you down. कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, कोई कुछ. Don't. और दिमाग के अंदर जो आते रहते हैं ना चैटर ख्याल, उनको निकालते जाइए. उनको सिफ्ट करके हटा दीजिए कि I don't want this. I don't want this thought to come to my head. जब वो आप निकालोगे उसको तो वो तंग नहीं करेंगे आपको. और अगर हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करिए. और मेडिटेशन करना शुरू करना मैंने बोल तो दिया आपको, लेकिन वो शुरू करने में ही आपको 2-3-4 साल लग जाएंगे. तो उससे बेटर ये होगा कि सांसों को कंट्रोल करना यानी प्राणायाम करना शुरू करिए. जब आप ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखेंगे, और प्राणायाम सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, जब आप ब्रेथ कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपके थॉट्स का भटकना बंद हो जाएगा. तो आपके अंदर जो विचार आते रहते हैं दिमाग में, फ्लक्स चलता रहता है, कभी ये कभी वो, दैट विल स्टॉप. ऑल दैट विल रिड्यूस टू सब्सटैंशियली. सो टेक दीज स्टेप्स एंड इफ नेसेसरी सिट विद समबडी यू आर वेरी कंफर्टेबल विद, जो तुमको पहचानता है अच्छी तरह, उसके साथ बैठो. चाहे वो अपना कोई क्लोज फ्रेंड हो, चाहे सीनियर हो, चाहे कोई कज़न हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कॉलेज में टीचर हो, स्कूल में हो, उनके साथ बैठो कि मुझे ये कन्फ्यूजन है, आप मेरा क्लियर करिए पाथ. दे विल हेल्प यू. दे विल हेल्प यू. सो फोकस करना तो आपको अंदर से ही करना पड़ेगा. अपने इधर उधर के विचारों को छोड़ना बंद कर दीजिए, देखना. और जो एक पाथ चुनना है वो अपने अंदर से डिटरमाइन करिए कि यही मुझको चुनना है, एंड डू दैट ओनली. एंड देन डोंट वेवर. बस हो गया, अब इसको मैं चेंज नहीं करूँगा. So that's what you have to do.
Does it help you? Thank you. Any of the young people sitting here would like to ask something? पीछे हैं दो लोग. There is one hand up. Good evening. Is there any relation with Paramatma and subconscious mind? परमात्मा एंड सबकॉन्शियस माइंड. वाह. परमात्मा क्रिएटर है जो सब कुछ जानता है, उसको सब चीज़ों का नॉलेज है और वो हमको कर्मों का फल देता है. जो कर्म है वो हमारी इंडिपेंडेंट चॉइस है, हमारी अपनी इच्छा है, वो हम कर्म करते हैं. परमात्मा उसमें इंटरफियर नहीं करता, फल जरूर देता है. सबकॉन्शियस माइंड हमारा अपना ही माइंड है जिसको हमने थॉट्स को दबा के रखा है और वो उभर के आते हैं कहीं कहीं से. माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी, ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, ये हम मदर नेचर से बोरो करते हैं. द बॉडी इज मेड आउट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, करेक्ट? फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस, इन सब चीज़ों से बनी हुई है ये बॉडी. हमने इसको नेचर से बोरो किया है और हम ये नेचर को वापस दे देंगे जब हम मरेंगे, राइट? सिमिलरली योर माइंड ऑल्सो इज बोरोड फ्रॉम नेचर. You have borrowed the mind from the supernatural mind of the nature. The nature's cosmic mind. There is a cosmic mind that you borrow your mind from. So mind and body are part of the nature which is not Paramatma. Paramatma is separate from nature. Paramatma knows what is going on inside you, but you are the one who controls it. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट्स निकल के आते हैं जो कभी ना कभी आपने उनको दबा के अंदर रख दिया है, कभी ना कभी आपने सोचा है और उनको दबा के अंदर रख दिया. वो निकल के कभी कभी उभर के बाहर आते हैं और आपको लगता है ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ है. लेकिन वही सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी बताता है. तो आप जब अपनी सर्च करते हो, जब आप रात को सोते हो ना, व्हेन यू गो, ऑल ऑफ यू, व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, व्हेन यू गो टू स्लीप एट नाइट, don't get disturbed by what is going on in the entertainment channels and news channels and all those things. Do not look at it. Pick up a book and read something that is good for you to read, whatever it may be. Even if it's a story book, doesn't make a difference. Or it's a nursery time story book. Pick up a book and read. Maybe for 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. And when you are ready to sleep, ask yourself the question. एक क्वेश्चन अपने आप को, इसको कहते हैं थॉट पिल. थॉट पिल. एक क्वेश्चन अपने आप को पूछिए कि मेरे लिए अच्छा क्या है. आपके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा. मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा डिसीजन अच्छा है, कौन सा करियर अच्छा है, कौन सी बात अच्छी. अपने लिए क्वेश्चन, स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछिए, स्पेसिफिक, और सो जाइए. आपको सुबह 4 बजे नींद खुलेगी और आपको जवाब मिल जाएगा. अगर आप फिर से सो जाएंगे तो आप जवाब भूल जाएंगे. अगर आप पेन और पेपर रख के बैठेंगे तो जवाब को नोट कर लीजिए कि ये मुझे मिला. फिर आप अगले दिन उसको पढ़ेंगे तो यू विल बी अमेज्ड कि दिस इज हाउ माई सबकॉन्शियस माइंड हैड एनालाइज्ड मी. यू कैन यूज दिस एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एवरी नाइट, planting a new thought pill, and you will get answers. Trust me, this has worked for many people. I can quote number of people. It has worked with many people I have trained and taught in my life. It will work. अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस काम के लिए यूज करिए. परमात्मा और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रिलेशनशिप सिर्फ इतनी है कि परमात्मा आपके अंदर जो चल रहा है वो जानता है, लेकिन परमात्मा इंटरफियर नहीं करता अनलेस यू हैव टेकन एन एक्शन और यू हैव मेड अ थॉट. जिस कर्म को आप कर लेते हैं वो कर्म ऑलरेडी करके पास्ट हो जाता है.
You have no control over it. If you think something, the thought already has become past. You have no control over it. That is what Paramatma के control में आ जाता है, and then Paramatma will give you a karma phal according to his laws. That is the only relation in between the subconscious and Paramatma. Have I confused you more, or have you got an answer? No, I've got the answer. Thank you. Thank you. This was a tough one, but I'm glad you asked me. हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? Anybody has any questions? हाँ, ये सामने दोनों जन हैं. Two of them, they have asking me something. My question is like you based in North America and people are still looking for the job or education or there. So what's your view on career path? On what? Career path means on the going there. Like we perhaps we have best heritages as we are, but still we are still going for a. If you ask me honestly, world recognition is all orchestrated drama. सारा का सारा prepared orchestrated drama है कि अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो हम आपको ज़्यादा recognition देंगे, आपको ये जॉब भी मिलेगी, वो भी मिलेगी. ये बनाया हुआ है सारा का सारा. जब तक हम इसके ट्रैप में हैं, हमको इसको फॉलो करना है. अगर आपको लगता है कि मेरी करियर पाथ में मुझे इसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है, तो डू इट. अदरवाइज ऑनेस्टली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. देयर इज नथिंग बेटर, not anything better available there than what is available to you here. You have the best of brains here, best of faculty. हो सकता है कि हम कोई चीज़ें ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये होता ही है, सब दुनिया में सब जगह होता है. लेकिन best of the brains, best of the faculty, best of the knowledgeable people you have here. और आज के दिन तो दुनिया में, अब वो कनाडा में मैं बताता हूँ आपको कि जितनी भी IT जॉब्स हैं वो सब हिंदुस्तानी लोग करते हैं. वो यहाँ के पढ़े हुए, यहाँ के एजुकेटेड है, वहाँ तो उन्होंने कोई कोर्स किया नहीं है. दे हैव नॉट डन एनीथिंग ओवर देयर. दे आर ऑल एजुकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड एवरी सिंगल बैंक, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एवरी वन इन IT इज अ इंडियन पर्सन. वो यहाँ से पास करके जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं. तो ऐसा तो नहीं कि वो एजुकेशन करेंगे तो ही जॉब मिलेगी. वो यहाँ से जॉब एजुकेशन करके गए हुए हैं. लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए कि वो दे आर सुपीरियर. कोई सुपीरियरिटी नहीं है उनमें. हाँ, आप पूछिए. यस, गुड इवनिंग. मेरा ख्याल है कि हमारी संस्कृति हमें शांति, अहिंसा और प्रेम सिखाती है. फिर भी हमारे जो हिंदू संप्रदाय जो डिफरेंट वर्ड से वर्क कर रहे हैं, तो उनमें एक आज रेस लगी हुई है. तो रेस का रीज़न अच्छा कि कौन बेस्ट है, कौन टॉप कर रहा है, वो एक लंबी रेस चल रही है और आज हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब है इस रेस की वजह से. तो इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है कि हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारे अंदर रेस चल रही है. एक्चुअली हमारी संस्कृति को फिनिश करने का हाँ, मेरे ख्याल से पता है पूरा प्लान चल रहा है. तो ठीक है ना. जब आपको ये समझ में आ जाता है, पता अवेयरनेस हो गई है, जब अवेयरनेस हो गई है तो एक्शन लीजिए ना. उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन मैसेजेस को, उस मीडिया को, उस सोर्स को अवॉइड करिए, स्टॉप करिए, कट ऑफ करिए, थ्रो इट ऑफ. इफ़ यू पे अटेंशन टू इट, वो कितने भी टीवी चैनल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, TRP या क्या कहते हैं ना, अगर आप नहीं देखेंगे तो उनको TRP नहीं मिलेगी ना. तो बंद कर दीजिए ना, क्यों देखते हैं. जो झूठ बोलते हैं उसके साथ आप देखिए, जो झूठ बोलता है अगर आप उसके साथ बैठे हैं तो आप झूठ के भागीदार हैं. इवन दो यू मे जस्ट बी लिसनिंग टू इट, यू आर अ पार्ट ऑफ इट. आपका एक कर्म हो गया और उसका कर्म फल आपको मिलेगा. वो जो टीवी पे झूठ बोल रहे हैं ना, उसको उसका मिलेगा, आपका नहीं मिलेगा. लेकिन आपको तो अपना कर्म फल मिलेगा ना. तो क्यों करते हैं. बी सेल्फिश कि मुझे अच्छा ही करना है, बस मुझे बुरा नहीं करना. आई डोंट वॉन्ट बैड थिंग्स. तो अगर आप, जो आपको पता है कि संस्कृति को बर्बाद करने वाले लोग हैं,
उनको आप अवॉइड करेंगे, यू विल कट ऑफ, दे विल बी फिनिश्ड, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। उसको अपोज करिए, सजेस्ट करिए, उसके अगेंस्ट में बोलिए, और अगर आप बोलते नहीं हैं तो कम से कम अवॉइड करिए, चुप, थ्रो इट ऑफ योर ड्राइंग रूम, थ्रो इट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना? हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? बच्चे बोलते हैं पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए तो मोबाइल लेके बैठते हैं तो कलाक निकल जाता है। हाँ, ये तो सच बात है ना, पढ़ते पढ़ते तो बोर हो ही जाते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है ना। 10-15 मिनट तो बराबर है, तो कलाक नहीं, अब ये प्रॉब्लम ये है कि या तो घर के अंदर आप दूसरा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं मतलब ये है कि कहानियाँ सुनाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे पूछिए कि क्या पढ़ा तुमने, क्यों बोर हो गए, तो आपसे बात करेंगे। अब मेरे पास टोरंटो में 9 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं जो कि मेरे साथ जूम के ऊपर अटेंड करते हैं सेशंस, ठीक। मैं उनको कभी गीता की, कभी रामायण की कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, कुछ बातें बताता हूँ, लेकिन मैं उनको बीच बीच में टाइम देता हूँ कि आप लोग आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, करिए, गप्पे मारना चाहते हैं। दे डोंट नो ईच अदर, बट दे नो ईच अदर ओनली फ्रॉम माई जूम मीटिंग्स। देन दे कनेक्ट कि तू कौन से स्कूल में जाता है, तू क्या पढ़ता है, अरे तेरे को ये कहाँ मिल गया, वो कैसा बनाया, देख मैंने कितना सुंदर लेगो बनाया, देख। सी, दे इंटरेक्ट विद देम। सो इफ दे हैव 15 minutes ऑफ इंटरेक्शन and I am spending 1 hour with them, there's nothing wrong in it. तो इंटरेक्शंस को आप इनकरेज करिए, उसको प्लान करके उनको बताइए कि हमने देना है। हम ये नहीं सोच सकते कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो जो मर्जी कर, तो then it is not, then it's a lost case। तो आप बच्चे को अपना संभाल नहीं पाएंगे। तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें अपने आप को उलझाना पड़ेगा, और जो अच्छा लगता है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो बच्चा अपने आप मोबाइल को नहीं देखेगा, उसका इंटरेस्ट कहीं और आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? सॉरी, करेक्ट। देखिए, ये अभ्यास और वैराग्य जो है ना, ये I can speak for 2 or 3 hours. अभ्यास, practice. Whatever you want to do in your life, you have to put it into practice. अगर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिगरसली, अभ्यास नहीं होगा। उसी को अभ्यास कहते हैं। अब आप सब पढ़ाई करते हैं तो आपको तो अभ्यास करना पड़ता है ना। आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो अभ्यास कर रहे हैं ना। तो अभ्यास के बिना तो ज़िंदगी में कुछ होता नहीं। और वैराग्य, जब आप अभ्यास करेंगे तो बाकी चीज़ों से तो आपको वैराग्य लेना पड़ेगा ना। अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो उस समय मोबाइल तो नहीं ना चलना चाहिए। उस समय तो मुझको बाहर समोसा चाट तो खाने की बात नहीं सोचनी है ना, मुझको तो उस वक्त पढ़ाई करनी है ना। तो वैराग्य उन चीज़ों का वैराग्य जो कि अभ्यास में बाधा देती हैं, हर उस चीज़ का। अब आप अपनी ज़िंदगी में सोच लीजिए कि मुझको अभ्यास किस चीज़ का करना है। जिस चीज़ का अभ्यास करना है, फिर वही बेटे की बात, फोकस। फिर बाकी चीज़ें आउट ऑफ फोकस जो हो गई, उसका वैराग्य हो जाना चाहिए। तो जब तक वैराग्य नहीं होगा आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे, फिर बाकी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती रहेंगी। और जब आप अभ्यास करेंगे तभी वैराग्य पैदा होगा। तो इसको ज़िंदगी में ढालना शुरू करिए। बहुत 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 बड़े बड़े मोती निकल कर आएंगे इसमें से। हाँ जी, और कोई पूछेंगे? क्या पूछना है? कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसका मैं आभारी हूँ आप सबका। कोई बात बुरी लगी हो तो बुरा मत मानिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस दिमाग में आते हो तो कभी भी आप इनके थ्रू, किसी और के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मेरे गीता सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे 7:30 PM।
on Zoom. Link ले लीजिए, मैं दे दूँगा, and you can all join. It's free. There's no charge for it. And any of you can join. I have open question answers. ऐसे ही question answer होते हैं वहाँ भी. Every session. Thank you very much, and I'm really grateful to you. Thank you. Can I make a statement? I'd just like to say that there is one time in your life, or in anybody's life, there is an opportunity to walk the spiritual path. It comes to you, take it. If you leave it, I don't know how many years it will take for you to come back again. So whenever you get the opportunity of taking the spiritual step, just take it. I think this is the beginning today. So after that, don't leave it. Just continue with it. Thank you. Thank you, Piyush ji. आप भारत आए, अहमदाबाद आए, मेरे यहाँ आए. 2.5 years I've been listening, and it's constantly working in the mind. And I think everybody in the group says their life has improved for the better, and they feel very good about it, and we behave like a family. So, if you want to join, you can get in touch with me. I will give you the link. The AMA has my address, AMA has my email ID, they have my mobile. You can connect with me. Thank you very much.